Okay, Tina. Yeah, go ahead. Thank you, sir. Sir, yesterday we learned about NSG. NSG is Network Security Group, which is a fundamental networking component in Azure, which it allows us to control the inbound and outbound network traffic to and from Azure resources, providing security control. So we understood it with the help of website that a website has both front end and back end. But the front end engineer or the public who is using it, they are not they are not been given access to the database of the website. So it is configured using NSG. For that, we planned out a infrastructure where we first created a resource group. Then we created a virtual network. Under that, we created two subnets. Under one subnet, we created a jump server and a web server with public ID. And under another subnet, we created a database server with private IP. So, and we enabled RDP connection. So after creating the virtual machines, when we went to the networking section of the virtual machine, we found that a network security group has been attached to that virtual machine, and it has some rules. These rules are the inbound port rules, outbound port rules, application security group, load balancing. But for now, we are only concerned about the inbound port rules and the outbound port rules. Sir, am I audible? Yeah, you are audible. Please go ahead. Okay. So inbound port rules means the network approachability to the resources from outside. And outbound port rules means when the virtual machine is going to connect with the world outside it. So under inbound port rules, we have different columns like priority, name, port, protocol, source, destination, and action. So initially we have RDP connection. We have an RDP rule by default through which we are able to connect to the virtual machine. But when we deleted this RDP rule and then tried to connect with the virtual machine, we found that we were not able to connect because the rule that enabled RDP connection was deleted. There was also an option where we could add our own inbound security rules. We tried using that, and in that the source, we gave the source as our IP address, which was the address from our own laptop. So after enabling that connection, we found, after adding that RDP connection, we found that it means that when the request comes from my laptop, I'm able to connect with the virtual machine. But when someone else tried to connect to the virtual machine with the with the source having the same IP address, he was not able to connect because the IP address was different in his laptop and in mine laptop. So this concept is there in big firms where the developers they have, in network security group, they have set up such that they have added the IP address of the developers. They have added only the developer's IP address in the source column, such that only the developer will be able to access the website, not the use will be able to access the server and not the other person. Next, we understood the concept of priority. So priority here means the lower the number, we have higher the priority. And there are the rules which we set, those are processed in priority order. And priority in security rules should be unique. And we have set both deny and access inbound port rules for the same IP address, but the difference was that their priority was different. And we even implemented this with the help of the infrastructure that we had planned, that we could connect to the jump database server from the jump server and not from the web server. So for this, we went to the networking section of database server, where we enabled the RDP connection for the jump server and denied the RDP connection for the web server. And when we when we did it in practical, we saw that we were successful.
we saw that we were able to connect to the database server from the JUMP server, but not to the database server from the web server. Then we learned about outbound port rules. It means that when the virtual machine is going to connect with the world outside it. So suppose that the database, I want that my database server should not be able to access to the internet. So for that, I have added outbound port rule, in which the source was any and destination was the internet. So after adding this rule, we found that I was not able to connect to the database server. I was not able to connect to the internet from the database server. Then we learned that NSG acts as firewall to the virtual networks. It means that even if the JUMP server is corrupted or is attacked, the database server remains intact, because we keep NIC in database server such that it is not open to internet. Like it can neither access, the database server can neither access to the internet, or nor anyone from outside can not everyone from outside has access to the database server. So it creates a resistance in the networking, which allows and denies the traffic coming out of the resource and going to the resource. So that's all from my end. Yeah, that's really good, Tina. Yeah, I think over to you, Nitish, then. Yeah. Hi, everyone. Good morning, all of you. So yeah, thank you, Tina. It was very good. And I see you very much hustling with this Azure part. So yeah, very good. Keep it up. And I expect this from everyone else as well. Okay. Chalo, let me know when the screen is visible to you guys. Just give me a minute. Is it visible, guys? Yes, sir. ओके चलो चलो कुछ बेसिक चीज के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। पहले देख लेते हैं कि कैसे एक वेब सर्वर बनता है। आज हम लोग का टॉपिक होने वाला है, द टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे इज बेसिकली दिस वन। टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट लोड बैलेंसर्स। ठीक है, ये लोड बैलेंसर्स होते क्या हैं? ठीक है, उससे पहले लेट्स टॉक अबाउट समथिंग कि हमारे एक सर्वर जो है, एक हमारा वीएम है, वो कैसे एक वेब सर्वर में कॉन्फ़िगर होता है। ठीक है, तो पहले कुछ बेसिक चीज हम लोग पता करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल दिस इज अ वीएम, और रादर तुम इसे सर्वर बोल सकते हो। फॉर एग्जांपल ये एक दिस इज फॉर एग्जांपल, चलो ये बोलते हैं कि ये फ्लिपकार्ट का सर्वर है। ठीक है, flipkart.com। ठीक है, ये फ्लिपकार्ट का सर्वर है। ठीक है, अब हम अगर flipkart.com यहाँ पे हिट करते हैं तो हमें कुछ यहाँ पे मिलता है। ठीक है, ये हमें ये सब कुछ अपना डेटा दे देता है। वॉट एवर फ्रंट एंड पार्ट ओवर हियर इज दैट ये समथिंग इज गोइंग ऑन विद दिस, दैट ये flipkart.com मेरे को हिट करने पे ये मेरे को कुछ दिया। ठीक है, तो ये इसके बैकएंड पे भी तो कुछ आईपी हुआ होगा ना। वो इनिशियली कर क्या रहा है, ये flipkart.com ये जो डोमेन है वो आईपी को रिजॉल्व कर रहा है। ठीक है, उसका आईपी चेक करते हैं पहले कि व्हाट्स द आईपी ओवर हियर। ठीक है, तो हम यहाँ पे करते हैं, पहले सीडी चलते हैं, फिर हम करते हैं पिंग flipkart.com। ठीक है, अब जैसे मैंने पिंग किया तो यहाँ पे तुम देख रहे होगे कि यहाँ पे देयर इज समथिंग आईपी ओवर हियर। ठीक है, इस आईपी को मैं कॉपी करता हूँ। ठीक है, मैं इसे नए टैब में खोलता हूँ। ये देखो, मैं इस आईपी को हिट कर रहा हूँ ये, लेकिन flipkart.com पे यहाँ पे रिडायरेक्ट कर रहा है। ठीक है, आई एम सेंडिंग यू द आईपी ऑन द चैट सेक्शन एज वेल। यू ट्राई करो तुम लोग इस आईपी को अपने मोबाइल ब्राउजर या फिर कहीं से भी हिट करने का। जस्ट चेक इट कि वो क्या रिडायरेक्ट क्या कर रहा है। ठीक है, एंड वंस यू गेट द डिजायर्ड वेब पेज, लेट मी नो। ठीक है, तो मेरे को पता चल गया कि देयर इज समथिंग गोइंग ऑन द बैकएंड कि ये flipkart.com इस पर्टिकुलर आईपी को हिट कर रहा है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल ये जो करेंटली है अभी मेरा, सो दिस वन इज एक्टिंग एज अ वेब सर्वर। ठीक है, देखो दो चीज हो सकता है, या तो हम इस डायरेक्टली आईपी को हिट करें या फिर डायरेक्टली इस डोमेन नेम को हिट करें। तो फॉर बेटर रीडेबिलिटी एंड ये
फॉर एग्जाम्पल अगर तुम लोग कल के डेट पे अगर कुछ मान लो यू डिजाइन सम वेबसाइट्स और तुम उसे EC2 इंस्टेंस में या फिर एज्योर के वर्चुअल मशीन पे उसे होस्ट करते हो, यू विल बी गेटिंग एन पब्लिक IP which you can share it to your to the recruiters, to your friends that see I have done something, I hosted something. तो या तो तुम उसे IP दे सकते हो, बट दिस IP अगर तुम किसी नॉन टेक्निकल बंदे को दोगे तो दे विल जस्ट थिंक दैट ये क्या है, व्हाट इज इट पर्टिकुलरली, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इस IP को इस डोमेन नेम, ठीक है, इट्स डोमेन नेम के साथ मैप करते हैं टू फॉर मेक इट बेटर रीडेबिलिटी। तो अब पता चलेगा कि flipkart.com बैकएंड में ये 103.243.32.90 को हिट कर रहा है, एंड फॉर दैट रीजन आई एम गेटिंग समथिंग लाइक दिस, ठीक है। द सेम गोज फॉर हियर। तो किसने हिट किया क्या? Yes, sir. क्या वो किया? The Flipkart page. चलो ठीक है, तो इसका मतलब ये पता चल गया कि बैकएंड में समथिंग हमारा ये फ्लिपकार्ट पेज वहाँ पे ओपन हो रहा है, ठीक है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लोड बैलेंसर। उससे पहले ना हम एक काम करते हैं, उससे पहले हम कुछ वेब सर्वर कॉन्फ़िगर करते हैं। एक वेब सर्वर कैसे कॉन्फ़िगर किया जाता है विंडोज मशीन में, ये क्या सबको पता है? एनीवन? नहीं पता? अच्छा चलो मैं बताता हूँ, ठीक है। तो पहले हम लोग ना 2 सर्वर बनाएंगे, ठीक है, 2 सर्वर बनाएंगे। उससे पहले हम सबसे पहले एक रिसोर्स ग्रुप क्रिएट करते हैं। चलो, तो कौन वॉलंटरीली आना चाहता है, एंड ही विल बी एक्सप्लेनिंग एवरी स्टेप फ्रॉम क्रिएटिंग अ रिसोर्स ग्रुप टू क्रिएटिंग VNets, देन सबनेट, देन VMs। एनीवन? सिद्धार्थ यादव? सिद्धार्थ यादव? सिद्धार्थ, आर यू देयर? चलो, सिद्धार्थ का रिस्पॉन्स नहीं आया, विल कीप इन माइंड। राकेश साहू? राकेश साहू? राकेश का भी नहीं आया रिस्पॉन्स। आयुष प्रधान? आयुष प्रधान? or anyone else voluntarily who want to explain that how to create a resource group, then create a VNet, then I want to create some virtual machines? Yes, sir. चलो ठीक है, अभिरूप, चलो कम ऑन। सो अभिरूप, एक मिनट, जस्ट मिनट, ठीक है। चलो, सो अभिरूप, नाउ आई हैव टू क्रिएट फर्स्ट ऑफ ऑल अ रिसोर्स ग्रुप, ठीक है। तो मैं कहाँ पे जाऊँ? सर सर्च में रिसोर्स ग्रुप, देन क्रिएट रिसोर्स, ठीक है। देन हम रिसोर्स ग्रुप का नाम देंगे, हम इसका नाम देते हैं LBRG, ठीक है। सर देन वी विल सिलेक्ट द रीजन, ओके, देन नेक्स्ट टैग्स, देन रिव्यू क्रिएट, ठीक है, क्रिएट ओके, रिसोर्स ग्रुप हो गया। उसके बाद हम वर्चुअल नेटवर्क ये करेंगे, ठीक है। चलो, अब वर्चुअल नेटवर्क क्रिएट करना है। क्रिएट वर्चुअल नेटवर्क, यस सर। रिसोर्स ग्रुप में हमारा रिसोर्स ग्रुप, ठीक है, देन वी विल गिव अ नेम टू इट, नेम दे देते हैं लोड बैलेंसर VNet, ठीक है, देन सर नेक्स्ट IP एड्रेस, ठीक है। ये सबनेट डिलीट करके हम एक अपना खुद का सबनेट दे देते हैं। यस सर। चलो, ये रहेगा मेरा LB सबनेट, यस सर। ठीक है। लेट्स कीप इट 0.0.1.0/24, परफेक्ट। yes sir. ऐड करते हैं Then sir next security, सिक्योरिटी, next tags, then create, yes sir. चलो लेट्स क्रिएट इट। Yes sir, then go to resources, गो टू रिसोर्सेज, चेक कर लेते हैं सबनेट ऐड हुआ है कि नहीं ऐड हुआ है। ओवरव्यू है,
दिस इज सेंट्रल यूएस, एड्रेस स्पेस इतना है, हमारे सबनेट्स क्या क्या हैं? Sir, LB subnet is created. ठीक है, इट्स क्रिएटेड एंड इट्स एसोसिएटेड टू इट। ठीक है, Yes. तो चलो अब हम चलते हैं, लेट्स क्रिएट अ वीएम फर्स्ट। ओके, Yes, sir. चलो लेट्स क्रिएट अ वीएम, क्लिक ऑन Create. क्रिएट। ठीक है, We will give our resource group name, then virtual machine name. लेट्स कीप दिस 2016। Yes, sir. ठीक है, यहाँ पे बस हम एक चीज कर रहे हैं, लेट गिव दिस नेम एज LB VM1। ठीक है, ये जो अवेबिलिटी ऑप्शंस है ना, ये अवेबिलिटी ऑप्शंस फॉर द टाइमिंग, मैं इसे अवेबिलिटी सेट कर रहा हूँ। ठीक है, ये मैं क्यों कर रहा हूँ ये मैं बाद में तुम लोग को सबको बताऊंगा। ठीक है, ये अवेबिलिटी सेट मैं क्यों किया, और ये अवेबिलिटी सेट को मैं एक नया अवेबिलिटी सेट बना देता हूँ। मैं लिखता हूँ माई AV सेट। ओके, Sir, then we will go down and select our लेट्स चूज दिस वन। अब यूजर then नेम username and password. सिलिकन। Sir, as we are configuring it as a web server, we will allow HTTP. Yeah, we can allow, let's allow everything for the moment. Now go to next disk. ये सब ऐसे रहने Sir, देते हैं। delete with VM. ये LB VNet है, दिस इज LB सबनेट। ये एक IP मिल जाएगा इसको। अलाउ सेलेक्टेड पोर्ट्स, बेसिक, परफेक्ट, मैनेजमेंट, मॉनिटरिंग, एडवांस, नेक्स्ट टैग्स, रिव्यू एंड। एक मिनट यार, Yes, sir. Create. ठीक है, चलो Okay. डिप्लॉय हो गया? नहीं, डिप्लॉय नहीं हुआ। डिप्लॉयमेंट इज इन प्रोग्रेस। देखो, हमने जो अवेबिलिटी सेट बनाया था, ये माई एवी सेट करके कुछ तो बना है। ठीक है ना, ये क्यों बनाया है ये बाद में डिस्कस करेंगे। एवरीथिंग एल्स रिमेन्स द सेम, राइट गाइस? ठीक है, ये क्यों हमने अवेबिलिटी सेट बनाया, लोड बैलेंसर होता क्या है, अभी हम लोग लेटर ऑन सब डिस्कस करने वाले हैं। चलो, now we should go to resource and just check everything. It's LBRG, LB VNet, LB subnet 1, DNS हमने कॉन्फ़िगर किया नहीं, हेल्थ स्टेट ये है जो भी है। दिस इज द पब्लिक IP, दिस इज द प्राइवेट IP। ठीक है, चलो, सो लेट्स कनेक्ट टू इट। कॉपी करते हैं इसे, और हाउ डू वी कनेक्ट इट? वाया आवर RDP। RDP कहाँ है हमारा? क्लिक ऑन ऐड PC, सिलिकन। ये है हमारा LB VM1 कर देते हैं, इसे ऐड करते हैं, कंटिन्यू।
Chalo, so now we have entered to our virtual machine. Now we will be configuring this as a web server over here. ठीक है, अब कैसे वेब सर्वर बनाए इसे वो अभी देख लेते हैं. लेट द सर्वर मैनेजर ओपन अप एंड प्री इंस्टॉलेशन जो भी प्रोसेस है वो हो जाने दो. क्लिक ऑन यस. वेट फॉर अ मोमेंट. ओके, सर्वर मैनेजर खुल रहा है. लेट द प्री इंस्टॉलेशन प्रोसेस जो भी हो रहा है इसको होने दो. चलो, so now this is over. Now we will go on to add roles and features. ठीक है, we will click on this add roles and feature to our server manager. We will click on next. This is our VM LBVM1. You can see LBVM1. Now click on next. ठीक है, अब हमें चाहिए this server to be configured as a web server. So when you scroll down, you have an web server IIS configuration. You just need to check this up. Click on add features. Click on next. अब देखोगे ये कुछ इंस्टॉल करेगा. This web server will install everything required over here. ठीक है, उससे पहले इंस्टॉल करने से पहले we just copy this up. ये कॉपी करते हैं इस पब्लिक आईपी को and we try to paste it over here कि देखते हैं ये कुछ आ रहा है क्या हमारे पास. 20.9.57.95 this is the IP, this is the public IP of my virtual machine. तो देखोगे यहाँ पे ये कुछ आ नहीं रहा है. This is just loading and loading because still we haven't configured it as a web server कि जहाँ पे मेरे पास HTTP request वो accept कर पाए. ठीक है, as soon as I click on install, let us check कि क्या होता है. चलो, ये जब तक इंस्टॉल होता है ना, एक और वेब सर्वर बनाते हैं, सेम विंडोज कॉन्फ़िगरेशन का ही बनाते हैं. लेट अस चेक व्हाट हैपेंस. गो टू दिस होम, गो टू वर्चुअल मशीन. जी LBVM2 अगेन, ये सब कुछ सेम है. दिस वन इज अगेन सेम. सिलिकॉन पासवर्ड इज password@123. This one is also password@123. ठीक है, सब कुछ कर देते हैं. नेक्स्ट नेटवर्किंग. ठीक है, LBVNet. दिस अगेन गोइंग टू बी द सेम सबनेट. इसके पास एक IP मिल जाएगा. NIC बेसिक्स अलाउ ये. नेक्स्ट मैनेजमेंट, नेक्स्ट एडवांस, नेक्स्ट टैग्स, नेक्स्ट रिव्यू एंड क्रिएट. ये इंस्टॉलेशन हो रहा है. ये हमारे VM1 पे अभी भी सर्वर इंस्टॉलेशन हो रहा है, वेब सर्वर इंस्टॉलेशन हो रहा है. ठीक है, अब वैलिडेशन पास हो गया. नाउ इट्स क्रिएटिंग आवर अनदर VM. ये डिप्लॉय होगा. इन द मीन टाइम इधर देखते हैं इधर क्या प्रोसीजर है.
See, you can see that installation is succeeded on LBVM1 as soon as I close it. और मैं यहाँ पे अगर आपने यहाँ पे अगर देखूंगा तो ये अभी तक साइट ये अनरीचेबल था, बट एज सुन एज आई, अब यहाँ देख रहे हो कुछ IIS सर्वर कॉन्फ़िगरेशन हो गया. आर यू गाइज फॉलोइंग मी अप? कि अभी वो सेम IP जब तक वेब सर्वर नहीं बना था वो कुछ नहीं दिखा रहा था, बट ये कुछ वेब सर्वर, इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विसेज ये यहाँ पे कॉन्फ़िगर हो गया है. ठीक है, ये कॉन्फ़िगर कैसे हुआ है? तो इसके लिए हम अपने माई PC पे जाएंगे. ठीक है, inside your this PC, inside your C drive, you will be having inetpub folder, और इसके अंदर एक www root folder बना होगा. इसके अंदर वो जो हमें जो कंटेंट दिख रहा है ना, वो जो कंटेंट दिख रहा है iistart.html, वो ये कंटेंट दिख रहा है. एक काम करते हैं, इसको थोड़ा मॉडिफाई करते हैं. लेट्स ओपन दिस विथ ओपन विथ नोटपैड. ठीक है, ये हटाते हैं. यहाँ पे लिखते हैं दिस इज virtual machine 1 of Windows. ठीक है, I just hit save. मैं इसे सेव करता हूं. ठीक है, अब मैं इसे अगर रिफ्रेश करूंगा तो क्या कंटेंट आना चाहिए? एनीवन? See, I have changed the configure. I have changed that iistart file. अब मैं यहाँ पे वहाँ पे कॉन्फ़िगर कर दिया हूँ. This is VM of Windows. ठीक है, this is VM1 of Windows. तो अभी मैंने वहाँ पे कॉन्फ़िगर चेंज किया तो यहाँ पे ये ऐसे करके यहाँ पे बन के आ रहा है. ठीक है, तो फिर अब this is not a properly a website, but this is just an IP with some content over there. ठीक है, एक वेबसाइट क्या होता है? This is a website. This is a website, this is a website, this is a website which has its own content. LinkedIn is a website. ठीक है, तो अब ये तो एक जस्ट एक रॉ कंटेंट है. हम एक काम करते हैं ना, इस पे कुछ कंटेंट डाल के देखते हैं. हम इसमें कुछ कंटेंट डालते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल गो टू लोकल सर्वर और हम कुछ सैम्पल वेबसाइट डाउनलोड करते हैं और वहां पे डाल के देखते हैं कि वो वहां पे रेंडर हो रहा है कि नहीं हो रहा है. ठीक है, इसको ऑफ कर देते हैं. हमें कुछ डाउनलोड करना है वहां से. चलो लेट्स चेक, वो ऑफ हो जाना चाहिए. चलो, नाउ इट्स ऑफ. वी गो टू आवर इंटरनेट एक्सप्लोरर. वी जस्ट टाइप इन google.com. okay. Google.com. So we'll be just download some sample websites. Download sample website. ठीक है, now we go to the download sample website. हम एक काम करते हैं, accept cookies. ठीक है, let's download any one of these websites. Let's download this one. Free template. ठीक है, let's download this. Save as. Save. चलो, ये यहाँ पे ये डाउनलोड्स पे ये ओपन हो गया है. ठीक है, मैं डाउनलोड्स पे जाता हूँ. मैं इसे अनजिप करके इसके जितने भी कंटेंट्स है ना, इसके जितने भी कंटेंट्स है, इसमें देखो जो एक index.html होता है ना, दिस इज कंसिडर्ड एज आवर लैंडिंग पेज. कि जब भी कोई एक वेबसाइट हिट होगा, कोई भी IP हिट होगा, उसके जो index.html के जो पार्ट है ना, वो सबसे पहले वहां पे लोड होता है. सो वी विल बी जस्ट कॉपिंग इट दिस अप. कॉपी करते हैं और अपने iNetpub पे जाते हैं. www रूट पे जाएंगे. फर्स्ट लेट्स ये दोनों को हटा देते हैं.
डिलीट कर देते हैं। अब इसको जैसे डिलीट करेंगे, अब हम यहाँ पे अगर हम इसको रिफ्रेश करेंगे तो ये बोलेगा फॉरबिडन एक्सेस डिनाइड। वहाँ पे ऐसा कुछ index.html या iistart.html वहाँ पे कुछ है ही नहीं। ठीक है, नाउ आई विल जस्ट पेस्ट माय कंटेंट ओवर हियर। चलो, अब जैसे ही हमारे पास यहाँ पे कंटेंट आ गया है, अब जैसे ही मेरे पास कंटेंट आ गया, आई विल जस्ट रीलोड इट। अब तुम देखोगे कि दिस होल वेबसाइट, दिस माय आईपी सर्वर हैज नाउ टेकन अप अ शेप। ये हमारे डेवलपर्स बना के देंगे, जो भी वेबसाइट्स होंगे वो हमारे डेवलपर्स बना के देंगे, एंड आवर जॉब इज टू जस्ट डिप्लॉय इट एंड गिव इट अ प्रॉपर आईपी, एंड दिस आईपी विल अगेन बी मैप्ड विद सम डोमेन नेम। ठीक है, तो आई विल जस्ट सेंड यू दिस आईपी इन द चैट एंड सी कि अगर ये ऐसा नहीं ना कि सिर्फ मेरे मशीन पे खुल रहा है या आप तुम लोग के मशीन पे नहीं खुल रहा हो। यू जस्ट क्लिक ऑन दिस कि ये होता क्या है, एंड लेट मी नो द व्हाट्स द आउटपुट। लेट मी नो व्हाट्स द आउटपुट। यस सर, खुल रहा है। ठीक है, चलो खुल रहा है। अब चलो, हमारा तब तक एक दूसरा वीएम भी शायद रेडी हो गया होगा। लेट्स गो एंड टॉक अबाउट दैट वीएम। ठीक है, ये डिप्लॉयमेंट इज कंप्लीट, गो टू रिसोर्स, दिस इज LBVM2। इसका भी कुछ एक पब्लिक आईपी है। अगेन इस पे भी जाके हम एक वेब सर्वर कॉन्फ़िगर कर देते हैं। ठीक है, जस्ट जूम दिस अप, ऐड अ पीसी। इसका नाम है LBVM2। आस्क वन रिक्वायर्ड नहीं, सिलिकॉन ले लो, क्लिक ऑन कनेक्ट। So this one is working as my web server as of now, क्योंकि हमने उसे कॉन्फ़िगर किया हुआ है। ठीक है, अब इसी तरह हम VM2 पे भी हम कॉन्फ़िगर करेंगे। So अब तुम लोग को एक फंडामेंटल क्लियर हो गया। लेट इट ऑल बी ready. Now your fundamental is clear right now, that how this particular server is converted to a web server। उस वेब सर्वर में कैसे हमें उसे IP मिलता है, वो IP तो allocate कर देता है हमारे क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर, एंड हाउ डू वी पुट ऑन द कंटेंट्स इन दैट वेब सर्वर, और वो कैसे हमारे ब्राउजर पे वो रेंडर करता है। ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट समथिंग वेरी इन जनरल। ठीक है, तो ये चीज काफी कॉमन है। How many of you have heard that on Big Billion Days, or rather on the Great Indian Festival Sale days, the Flipkart website or rather the Amazon website gets crashed? कितने लोगों ने सुना है, या कितने लोगों ने ऐसा होते हुए भी देखा है कि इतने बड़े वेबसाइट क्रैश करते हुए? किसी ने देखा है या फिर सुना है कि हाँ ये वेबसाइट क्रैश करता है? अच्छा, ठीक, चलो। तो ये वेबसाइट क्रैश क्यों करता है, ये वेबसाइट क्रैश करने का रीजन क्या है? ठीक है, तो वो पहले समझते हैं कि वेबसाइट क्रैश करने का रीजन क्या है। ठीक है, अब अभी हमने क्या किया, अभी हमने एक बहुत ही छोटे लेवल पे हमने एक VM बनाया, उस VM के ऊपर हमने कंटेंट डाला, और हम यहाँ से मैं एक सर्वर से हिट किया और किसी दूसरे ने मैंने उसे IP भेज दिया तो उसने हिट किया। इसका जो भी कंटेंट था इस VM का जो भी कंटेंट था वो मुझे एक वेब पेज के फॉर्म पे मेरे को मिला। ठीक है, लेकिन इस पर्टिकुलर VM का कुछ रेस्ट्रिक्शंस भी तो होगा। इस VM का रेस्ट्रिक्शंस क्या होगा? इस VM का रेस्ट्रिक्शंस ये होगा कि ये हो सकता है कि एक बार पे, मतलब विद इन अ सेकेंड, इट कैन ओनली हैंडल 10 रिक्वेस्ट और रादर 100 रिक्वेस्ट। लेकिन अब हमारे वेबसाइट्स, हमारे सर्वर्स को तो स्केलेबल बनाना है ना, कि ताकि बहुत सारे लोग उसे हिट कर पाए और उसे इजिली एक्सेसिबल हो। अल्टीमेटली हमारा काम क्या है? यूजर्स को सर्विस प्रोवाइड करना। अगर कुछ एक वेबसाइट बनाए हैं, दैट शुड बी अवेलेबल ऑल द टाइम। अगर वो डाउन है, अगर वो सिस्टम क्रैश कर रहा है, इट विल इफेक्ट आवर इंफ्रास्ट्रक्चर, इट विल इफेक्ट आवर रेवेन्यू, एवरीथिंग विल बी इफेक्टेड, आवर बिजनेस विल बी इफेक्टेड। ठीक है, तो अभी हमने एक बेसिक लेवल पे एक VM बनाया, उस पर 2-4 यूजर ने हिट किया। अगर मान लो कि अगर ये IP को मैं पूरे इंडिया में सबको बांट दूं और वो सबको बोलूं कि एक बार पे इसे हिट करने के लिए, देन अगेन माय सर्वर क्रैश कर जाएगा, मेरा सर्वर मैनेजर क्रैश कर जाएगा। वो बोलेगा वो उतना कैपेबल है ही नहीं कि वो उतने लोड को सर्व कर पाए। ठीक है, तो ये एक हमारा एक प्रॉब्लम आ गया। तो इसका सॉल्यूशंस खोजा गया कि क्या किया जा सकता है। तो सब लोग ने बोला कि एक काम करते हैं ना, हमने एक VM बनाया है, ऐसा ही मल्टीपल VMs बना देते हैं। अब मल्टीपल VMs बना देंगे, अब हमारे पास मल्टीपल VMs आ जाएंगे, और मल्टीपल VMs में हम सेम कंटेंट डाल देंगे। अब लेकिन इसमें दिक्कत क्या आएगा, अब हमें पता कैसे चलेगा कि किस VM को हिट करना है और किस वक्त हिट करना है?
ठीक है। अब हमारे पास सर्वर तो एक स्केलिंग का कंसेप्ट होता है हमारे डेवऑप्स में, दैट हाउ डू यू स्केल अप योर सिस्टम्स। तो स्केलिंग का बहुत सारे तरीका होता है, एक वर्टिकल स्केलिंग होता है, हॉरिजॉन्टल स्केलिंग होता है। तो देखो एक अप्रोच तो ये है कि तुम इसी वीएम के, एक वीएम के इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ा दो। इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना मतलब अभी इसका मान लो अगर 8 GB रैम है, यू गिव इट 64 GB रैम, एंड इफ सपोज इसका स्टोरेज अगर 512 GB SSD है, तुम उसे 3 TB 4 TB कर दो, लेकिन रिसोर्स एक ही रखोगे एंड यू आर जस्ट इंक्रीजिंग द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर वीएम। अब अगला प्रोसेस क्या है? अगला प्रोसेस ये है कि यू कैन इंक्रीज द नंबर ऑफ इंस्टेंसेस। तुम बोलो कि नहीं नहीं सेम रहने दो, एंड यू जस्ट गिव मी अ कॉपी ऑफ ऑल दीज इंस्टेंसेस। 4-5 इंस्टेंसेस बना के रखो अपने पास, और रादर दी वर्चुअल मशीन्स जो तुम्हारे वेबसाइट्स को सर्व करेगा। ठीक है, अब चलो अब स्केलिंग हो गया। अब लेकिन अब हम एज अ यूजर, अब मेरे को पता कैसे चलेगा कि किस वीएम को कब हिट करना है? ये ऑल विल बी हैविंग डिफरेंट आईपीज। अब हम कैसे क्या कर सकते हैं? तो अब हमारे पास एक नेटवर्किंग थ्योरी आया जिसका नाम था लोड बैलेंसर। ठीक है, लोड बैलेंसर क्या करता है वो मैं भी समझाता हूँ। ठीक है, तो एक नेटवर्किंग डिवाइस आया, इसको हम लोग बोलते हैं लोड बैलेंसर। लोड बैलेंसर। अभी जब हम लोग इस वीएम के आईपी को हिट कर रहे थे तब हमें वो कंटेंट दिख रहा था। ये लोड बैलेंसर क्या करता है ना, ये बोलता है कि आप मेरे को हिट करो, मीन्स वॉट एवर रिक्वेस्ट यू वॉन्ट टू गिव यू हिट मी। ठीक है, सो अगर फॉर एग्जांपल ये पांच यूजर ने इसे हिट किया है, तो इस लोड बैलेंसर एक नेटवर्किंग डिवाइस है, तो इसका खुद का एक अपना आईपी होगा, एक अपना पब्लिक आईपी होगा। हम लोग ये एलोकेट कर सकते हैं, और हम यूजर्स को ये लोड बैलेंसर का पब्लिक आईपी हम बता देंगे कि लोड बैलेंसर का ये जो पब्लिक आईपी है, एंड दिस इज व्हाट दिस फ्लिपकार्ट एंड अमेज़न एंड एवरी अदर वेबसाइट्स आर डूइंग, कि वो हमें लोड बैलेंसर का आईपी देते हैं। अब हम यहाँ से हिट किए हैं लोड बैलेंसर पे, अब ये लोड बैलेंसर का काम है कि ये जो रिक्वेस्ट है ये सर्व कौन करेगा, ये कौन सा वीएम सर्व करेगा। ठीक है, तो अब क्या होता है, अब ये सारे रिक्वेस्ट यहाँ से आए और ये अब यहाँ से ट्रैफिक को डिस्ट्रीब्यूट करता है। ये ट्रैफिक को डिस्ट्रीब्यूट करता है कि कौन से लोड बैलेंसर किस वीएम को सर्व करवाएंगे, ये लोड बैलेंसर का काम है। तो अगर लोड बैलेंसर का एक स्पेसिफिक डेफिनेशन लिखना चाहते हो, बिकॉज दिस इज वन ऑफ द मोस्ट फ्रीक्वेंट क्वेश्चंस आस्क्ड, इफ सपोज यू टेल दैट यू नो दैट आई हैव नॉलेज ऑफ द क्लाउड प्लेटफॉर्म्स लाइक GCP, Azure एंड AWS, तो ये लोड बैलेंसर्स तुम्हें पक्का पूछा जाएगा। ठीक है, तो जस्ट राइट इट डाउन और अदर जस्ट रिमेंबर इट। अ लोड बैलेंसर इज अ नेटवर्किंग डिवाइस और सर्विस that evenly distributes incoming network traffic across multiple servers or resources. ठीक है, its purpose is to optimize resource utilization, improve responsiveness and ensure high availability for the applications or services. जितना मैं बोला डेफिनेशन कुछ समझ में आया? What I'm trying to say कि लोड बैलेंसर का काम क्या है? Everyone, or should I repeat it? Sir, could you please repeat? ठीक है, देखो लोड बैलेंसर इज अ नेटवर्किंग डिवाइस और सर्विस, जो भी बोलना चाहते हो बोल सकते हो, कि दैट इवनली डिस्ट्रीब्यूट्स इनकमिंग नेटवर्क। ये इनकमिंग नेटवर्क को, ये जो इनकमिंग नेटवर्क आया, दैट इवनली डिस्ट्रीब्यूट्स द इनकमिंग नेटवर्क अक्रॉस मल्टीपल सर्वर्स। इस मल्टीपल सर्वर पे ये लोड बैलेंसर इनकमिंग सर्वर को इस मल्टीपल सर्वर्स पे इवनली डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। ठीक है, इसका पर्पस लगाने का क्या होता है कि हमारा जो रिसोर्स यूटिलाइजेशन है, हमारे जो रिसोर्स, अगर हम लोग पास 100 रिसोर्स हैं तो सारे रिसोर्सों को यूटिलाइज, ऑप्टिमाइज करना, ऑप्टिमाइज रिसोर्स यूटिलाइजेशन, हमारा रिस्पॉन्सिवनेस, कितने देर पे हमारा सर्वर मेरे को रिस्पॉन्ड कर रहा है, इसको इंप्रूव करना, और हाई अवेबिलिटी मतलब मेरा कभी सर्वर डाउन नहीं होना चाहिए, माई एप्लीकेशन शुड ऑलवेज बी अप। फ्लिपकार्ट अगर अभी 5 मिनट के लिए डाउन हो जाएगा, दे विल जस्ट बी इन अ लॉस ऑफ सम मिलियंस और बिलियंस। ठीक है, तो ये लोड बैलेंसर का काम होता है। ठीक है, तो क्लियर एवरीवन? थ्योरेटिकली इज इट क्लियर एवरीवन? चलो ठीक है, इजी कंसेप्ट है, इट्स एन इजी कंसेप्ट, बट इट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट फॉर क्लाउड इंजीनियरिंग। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। अब ये लोड बैलेंसर के ना टाइप्स होते हैं,
एक होता है हमारा बेसिक लोड बैलेंसर, ठीक है, एक होता है हमारा स्टैंडर्ड लोड बैलेंसर। दोनों के अपने अपने डिफरेंसेस हैं। यू कैन जस्ट सर्च इट ऑन द वेब दैट व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन अ बेसिक एंड अ स्टैंडर्ड लोड बैलेंसर, ठीक है। तो बहुत सारे इसके डिफरेंसेस मिल जाएंगे। तो बेसिक लोड बैलेंसर ना मोस्टली ये फ्री होता है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होता है, इसका कुछ चार्जेस वार्जेस ज्यादा लगता नहीं है। लेकिन स्टैंडर्ड लोड बैलेंसर इसका चार्जेस लगता है, इसमें सिक्योरिटी ग्रुप इनेबल्ड रहता है। और बेसिक लोड बैलेंसर में ना तुम्हें बस इन वीएम्स के बेसिक आईपी को बस एलोकेट कर देना है और ये अपना वो डिस्ट्रीब्यूट करके बैठ जाएगा, ठीक है। तो दिस इज अ बेसिक लोड बैलेंसर एंड स्टैंडर्ड लोड बैलेंसर हम लोग कल पढ़ने वाले हैं। वो कल पढ़ेंगे कि कैसे उसमें नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप भी आ जाता है, क्या क्या एक्स्ट्रा चीज ऐड हो जाता है फ्रॉम बेसिक। तो फॉर एग्जांपल अगर ये एक बेसिक लोड बैलेंसर है ना, तो इसका कुछ थ्रेशोल्ड होगा कि ये 300 वर्चुअल मशीन तक ही वो डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है नेटवर्क ट्रैफिक को। लेकिन स्टैंडर्ड लोड बैलेंसर हो सकता है 1000 वर्चुअल मशीन या 1 मिलियन वर्चुअल मशीन को वो लोड डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है। इट टोटली डिपेंड्स कि वो कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर पे बना हुआ है। लेकिन बेसिक का लिमिटेशन यही है कि बहुत ही मिनिमम वर्चुअल मशीन्स पे ये लोड ये कर पाएगा। चलो एक और कैटेगराइजेशन होता है, एक इंटरनल कैटेगराइजेशन होता है हमारे लोड बैलेंसेस का, उसको हम लोग बोलते हैं, एक होता है पब्लिक लोड बैलेंसर और एक होता है इंटरनल लोड बैलेंसर। ये कुछ पता चल रहा है ये पब्लिक लोड बैलेंसर और इंटरनल लोड बैलेंसर क्या होता होगा? एनीवन? अच्छा चलो मैं बताता हूँ। देखो लोड बैलेंसर भी दो तरीके के होंगे, पहले तो मैंने बताया बेसिक और स्टैंडर्ड, ठीक है। अब ये बेसिक स्टैंडर्ड के भी एक फर्दर कैटेगराइजेशन होता है पब्लिक और इंटरनल, ठीक है। ये जो लोड बैलेंसर है ये पब्लिकली अवेलेबल फॉर मी एज अ यूजर टू एक्सेस दीज वीएम्स। ऑल दीज वीएम्स को एक्सेस करने के लिए हमारे पास पब्लिकली अवेलेबल है, ठीक है। इसलिए दिस इज नोन एज पब्लिक लोड बैलेंसर, क्योंकि ये एक यूजर ये पब्लिकली अवेलेबल है तो हमने इसे यहाँ पे हिट किया, अब ये जाके इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया। अब ये जो वीएम्स हैं, दीज वीएम्स आर बेसिकली वेब सर्वर। अब ये वेब सर्वर भी तो किसी और सर्वर से जुड़ा हुआ होगा ना, हो सकता है लेट्स सपोज एक डीबी सर्वर से जुड़ा हुआ होगा, ठीक है। अब तो डीबी सर्वर भी मेरे मल्टीपल, अब एक डीबी सर्वर थोड़ी ना होगा, हो सकता है हमारे पास मल्टीपल डीबी सर्वर भी हो, हमारे पास चार डीबी सर्वर भी है हमारे लेट्स सपोज। तो एक लोड बैलेंसर यहाँ भी तो लगा होगा, एक लोड बैलेंसर यहाँ भी तो लगा होगा। और ये सारे जो वर्चुअल मशीन्स है इंटरनली ये इसको हिट करते हैं कि मेरे को डेटा लाके दो भाई जल्दी से, ठीक है। और ये इन रिटर्न अपने डेटा को यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट करता है, ठीक है। तो ये लोड बैलेंसर क्या पब्लिकली अवेलेबल है हमारे लिए? नहीं है, इसलिए इसको बोला जाता है इंटरनल लोड बैलेंसर, इसको बोला जाता है पब्लिक लोड बैलेंसर। क्लियर एवरीवन? Yes, sir. Everyone clear with the topic, with the terms and the terminology? Yes. ठीक है चलो Yes, अब sir. तो देखते हैं। हमने तो यहाँ पे कॉपी कर लिया, हमारा एक और वीएम यहाँ पे रेडी हो रहा है, ठीक है। ये वीएम रेडी हो गया, हमें इसे भी IIS सर्वर बनाना है। हम गए ऐड रोल्स एंड फीचर्स, क्लिक ऑन नेक्स्ट, क्लिक ऑन नेक्स्ट, क्लिक ऑन नेक्स्ट, वेब IIS को क्लिक कर दो, ऐड फीचर्स, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, इंस्टॉल। चलो थोड़ा वापस डायग्राम पे आते हैं हम लोग। अब मैं तो बोल दिया कि ये सारे लोड बैलेंसर पे ये सारे सर्वर्स कॉन्फ़िगर हो सकते हैं, लेकिन ये सब कॉन्फ़िगर होने के लिए जो मेरा एक रिक्वायरमेंट था कि दीज वर्चुअल मशीन्स शुड बी इन अ सिंगल अवेबिलिटी सेट। एक सेट बनता है उसको बोलते हैं हम लोग अवेबिलिटी सेट। उसको हम लोग ने अभी नाम क्या दिया था, याद करो? हमने कुछ ऐसा नाम दिया था ना, माई AV सेट करके, ठीक है। तो हमने यहाँ पे एक अवेबिलिटी सेट बनाया, उस अवेबिलिटी सेट में अभी हमने ये दोनों वीएम को डाल दिया, इस दोनों वीएम को डाल दिया। तो जब भी लोड बैलेंसर पे इसको बाइंड करना है हमारे सर्वर्स को, तो दे शुड बी इन अ अवेबिलिटी सेट।
इस अवेलेबिलिटी सेट पे होगा, देन ओनली वी कैन कॉन्फ़िगर ऑल दिस सर्वर्स टू दिस पर्टिकुलर लोड बैलेंसर। ठीक है, लेट्स मूव ऑन, ये इंस्टॉलेशन होने दो, इसके पब्लिक आईपी को हिट करते हैं तब तक। चलो ये भी हिट हो गया है क्योंकि हमारा कंप्लीट हो गया होगा। ठीक है, इंस्टॉलेशन सक्सीडेड। तो अब हमारे पास दो वेब सर्वर हैं, एक वेब सर्वर है 172.170 है और एक है हमारा 20.9.57.95। हमारे पास दो सर्वर है। ठीक है, अब हमें बस लोड बैलेंसर कॉन्फ़िगर करना है ताकि हम देख पाए कि हमारा ये लोड डिस्ट्रीब्यूट हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। ठीक है, उसके लिए लेट्स क्रिएट अ लोड बैलेंसर। ठीक है, अब हमने होम पे जाएंगे, वी विल सर्च ओवर हियर लोड बैलेंसर, क्लिक ऑन लोड बैलेंसर, हम क्रिएट करेंगे एक लोड बैलेंसर। ठीक है, एक लोड बैलेंसर क्रिएट करेंगे, ये LBRG रहेगा, सेंट्रल यूएस रहेगा, ये नेम रहेगा मेरा बेसिक LB। ठीक है, और ये मेरा SQ जो रहेगा ना, हम ये कौन सा लोड बैलेंसर बना रहे हैं, बेसिक लोड बैलेंसर बना रहे हैं। ठीक है, तो हम इसका SQ देंगे बेसिक। अब यहाँ पे देखो टाइप पूछ रहा है पब्लिक और इंटरनल। अभी मैंने तुम्हें बताया कि पब्लिक लोड बैलेंसर क्या होता है और इंटरनल लोड बैलेंसर क्या होता है। तो ये क्या रहने वाला है, जो हम लोग लोड बैलेंसर बनाने वाले हैं वो हम लोग पब्लिक। परफेक्ट। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट आईपी कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो हमें इसे फ्रंट एंड आईपी देना पड़ेगा, इस लोड बैलेंसर का कुछ एक आईपी होगा, तो हम एक ऐड करते हैं फ्रंट एंड आईपी। ठीक है, हम बोलते हैं माई फ्रंट एंड आईपी, माई फ्रंट एंड, बस माई फ्रंट एंड लिखते हैं। ठीक है, क्रिएट अ न्यू, इसे एक नया पब्लिक देते हैं, नया पब्लिक आईपी देते हैं, माई फ्रंट एंड आईपी। परफेक्ट, इसके पास अवेलेबल है, मैं ओके किया। ठीक है, ऐड करता हूं। चलो, अब ये यहाँ पे इसका ये आईपी एड्रेस मेरे को मिल गया, एक मैंने माई फ्रंट एंड आईपी करके, माई फ्रंट एंड आईपी टू बी क्रिएटेड अभी है, अभी ये क्रिएट हो जाएगा कुछ देर के बाद। ठीक है, मैं नेक्स्ट चलता हूँ, नेक्स्ट बैकएंड पूल। तो अब ये लोड बैलेंसर का मेरे को फ्रंट एंड आईपी मिल गया, ये बैकएंड में किन किन सर्वर को अपने साथ जोड़ के रखेगा, तो हम लोग यहाँ पे ऐड करेंगे बैकएंड पूल। हम बोलेंगे बैकएंड पूल विल बी माई बैकएंड पूल, माई बैकएंड पूल। कौन से वर्चुअल नेटवर्क पे रहेगा, ये LB VNet पे रहेगा। ठीक है, अब जैसे ही हम इस पे ऐड पे क्लिक करेंगे, ये रिसोर्स क्यों नहीं आ रहा है, just give me a minute. IP configuration associated to this virtual machine scale sets must be in a single location as of load balancer or be in the same virtual network. This is LBRG, this is Central US. Yeah, perfect. Public. My front end IP, backend pools. Oh, just give me a minute. My backend pool. My virtual networks, यहाँ पे जो मैंने virtual machines बनाया है, that should have popped up over here. ठीक है, चलो देख लेते हैं क्यों नहीं आ रहा है, let's check it out. ये हमारा LBRG है, ओवरव्यू, ये LBVM1 है, LBVM2 है, yeah, everything is configured over here.
LBVM1 is in my availability set. My AV set. The same goes for LBVM2. Availability set. अच्छा, हमने VM2 को अवेलेबिलिटी सेट नहीं दिया था क्या? Do you remember that did we give the availability set to VM2 or not? चलो, LBVM1 यहाँ पे हमारे पास आ रहा है, LBVM2 नहीं आ रहा है। अच्छा, 2 वर्चुअल मशीन्स यहाँ पे आ रहा है। अच्छा, दोनों आ रहा है। Then why I'm not able to add it? Virtual machines, so resources that are not available for selection. अच्छा, why these are not available for selection? Availability set, my availability set. This one is the SKU of the resources is क्या लिख रहा है ये? The SKU of the resource IP address is different from the SKU of the load balancer. अच्छा, SKU की load balancer different है. Let us check. Create on again load balancer. हमने VM के SKU पे बेसिक रखा था ना? Yes, sir. Yes, sir. Basic. LB. ये बेसिक चला गया, ये पब्लिक हो जाएगा। नेक्स्ट फ्रंट एंड पे चले जाते हैं। कुछ है बना हुआ? माई फ्रंट एंड IP। क्रिएट कर लेते हैं एक नया IP। माई फ्रंट एंड IP। Click on add. Next backend pools. Add a backend pool. तो अभी भी नहीं आ रहा है ये। My backend. Virtual LBVnet location central US. So ये अभी भी बोल रहा है SKU इसका डिफरेंट है। अच्छा, देख लेते हैं SKU डिफरेंट है क्या? How do you check the SKU? Anyone? This is the virtual network, central US, tags and public IP address is 172. LBVnet, LB subnet. चलो थोड़ा डिबग करते हैं इसको। LBVM2, this is the public, NIC ये है, private IP ये रहा। This is the public IP. Click on overview. ओहो, ये देखो, ये SKU स्टैंडर्ड आ गया यहाँ पे। This should have been basic, क्योंकि हम लोग यहाँ पे एक बेसिक लोड बैलेंसर कॉन्फ़िगर कर रहे हैं। So how do we change it to standard to basic? चलो वो देख लेते हैं, वो सर्च करते हैं कि कैसे एक SKU को चेंज करते हैं टू बेसिक। ठीक है, लिखते हैं changing SKU of VM in Azure to basic. Change SKU for an Azure AD domain services. नहीं, for virtual machine. We want for virtual machine. तो लोगों को समझ में आया क्या गड़बड़ हुआ? हाँ। Change the site, changing the SKU. चलो
I would like to change the VM size. I don't want the VM size. अच्छा एक बार यही देख लेते हैं ना. This SKU should not be standard. It should have been to basic. इसे बेसिक करना है. ये कैसे चेंज कर सकते हैं? कॉन्फ़िगरेशन पे चलते हैं. अच्छा यहाँ पे स्टैटिक. अच्छा काम करते हैं, ये दोनों VMs को अभी डिलीट कर देते हैं और फिर से दोनों VM बनाते हैं और तब तक फिर अपना ये लोड बैलेंसर रेडी करेंगे. ठीक है. लेट इट क्रिएट इट क्विकली. वी गो टू आवर होम और अपने वर्चुअल मशीन्स पे जाते हैं. हमारे पास 2 वर्चुअल मशीन्स हैं. वी विल जस्ट ट्राई टू एक एक करके डिलीट करते हैं. पहले यहाँ से कनेक्शन डिस्कनेक्ट कर देते हैं. अच्छा लेट्स डिस्कनेक्ट इट, डिलीट इट. एक जल्दी से VM बनाते हैं. लेट्स डिलीट इट, अप्लाई फोर्स डिलीट. पब्लिक IP डिलीट कर देना क्योंकि फिर मेरा कोटा खत्म हो जाएगा. डिलीट कर देता हूँ मैं. डीएलोकेटिंग वर्चुअल मशीन LB VM1. सेम गोज फॉर LB VM2. काम करते हैं, हम इसे डिलीट कर देते हैं. अप्लाई फोर्स डिलीट, एसोसिएटेड. ठीक है. आई डोंट वांट द पब्लिक IP एज वेल. डिलीट कर देता हूँ. चलो लेट्स वेट फॉर सम टाइम. तब तक ये डिलीट होता है. सो बेसिक फंडामेंटल हमारा यही रहेगा कि हमने अभी तक LB कॉन्फ़िगर करने गया तो हमें एक चीज पता चल गया कि जो इसके SKU होंगे, जो इसके IP के SKU होंगे, दैट शुड बी बेसिक. अगर हमें बेसिक लोड बैलेंसर बनाना है तो, और जब स्टैंडर्ड लोड बैलेंसर बनाना है तो क्या करना है, दैट वी विल गेट टू नो मोर अबाउट इट ऑन टुमारोज क्लास. तो हमें पता चल जाएगा कि स्टैंडर्ड लोड बैलेंसर कैसे ये होता है. तो अभी क्लियर है कि हमें करना क्या है. ठीक है. सो आई विल बी कॉलिंग एनी वन ऑफ द नेम और वो मेरे को समझाएगा कि हम लोग करना क्या चाह रहे हैं. ठीक है. रितेश कुमार. रितेश आर यू देयर? चलो रितेश ने रिप्लाई नहीं किया. कस्तूरी. आर यू देयर? गाइस देखो, यू हैव सम क्रेडिट्स ओवर हियर एज वेल कि ये दिस इंटर्नशिप इज नॉट एज दैट कि तुम लोग बस यहाँ पे आओ, ऑनलाइन अटेंड करो एंड देन यू जस्ट गो. There's some mandatory class interactions as well because these are remote classes. We have to monitor that who are interacting with the tutor or with the resource person. So this is a very bad kind of an impression on anyone. अगर वो कभी आते हैं, if suppose our FIC even enters this meeting and if suppose he sees that nobody is interacting with anyone, then it's a very bad impression. Prateek Swine, are you there? Prateek Swine. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है. चलो. So Prateek, what we are trying to do, just explain to the all class. Prateek. Prateek, you are not listening, I guess. Yes, sir. Yes, sir. हाँ चलो बताओ. What you are trying to do? So we will trying to do a load balancer configuration. Mm-hmm. So we are creating a virtual machine with that. Okay. Virtual machine हम क्यों बना रहे हैं?
Okay, anyone with the clear idea that what we are trying to do today in our today's class? Anyone? So basically, we are trying to create a load balancer that will connect my virtual machines 1 and 2 in the back end, and we will give a IP to its front end that will serve requests from the users that will try to connect my both web servers. Okay, perfect. This is what we are trying to achieve. So देखो, these are the things that you need to understand. See, अगर किसी को problem statement पता ही नहीं है, if suppose you don't know the problem statement, फिर वो कैसे अगर हो पाएगा? Create new पे क्लिक करते हैं. अच्छा, ये बेसिक होना चाहिए. See, the SKU should be basic. ये पहले स्टैंडर्ड सेलेक्टेड था, ठीक है. अब मैं इसे ओके करता हूँ. अब नाउ इट इज बेसिक. क्लिक ऑन दिस वन. अगर क्रिएट न्यू पे जाते हैं, ये ऑलरेडी बेसिक सेलेक्टेड है, ठीक है. दिस वाज द थिंग दैट वी मिस्ड इन प्रीवियस मेकिंग ऑफ द VMs. ठीक है. चलो चलो चलो, मैनेजमेंट सही है, मॉनिटरिंग सही है, एडवांस्ड. चलो, जब तक सर्वर डिप्लॉय होता है, कुछ हम बेसिक क्वेश्चंस पूछते हैं. अब देखते हैं कौन कौन आंसर दे पाता है, ठीक है. इन द मीन टाइम आई एम जस्ट गोइंग ऑन विद दिस कॉन्फ़िगरेशंस एंड ऑल. चलो, एक ओपन क्वेश्चंस टू एवरीवन. इट्स जस्ट एन लॉजिकल क्वेश्चन. आई होप एवरीवन कैन अंडरस्टैंड इट, ठीक है. लेट्स सपोज एक हमारे पास एक एप्लीकेशन है. लेट्स सपोज एक एप्लीकेशन है, उसके 100 वर्जन्स अवेलेबल है, ठीक है. एक एप्लीकेशन है, लेट्स सपोज एक व्हाट्सएप एप्लीकेशन है, उसके मतलब वर्जन 1, वर्जन 2, वर्जन 3 करके 100 वर्जन्स अवेलेबल है, ठीक है. तो अब हुआ क्या है, अब दिक्कत क्या हुआ है ना, एक फीचर था, फॉर एग्जांपल एक एक्स फीचर था, फॉर एग्जांपल मैसेज सेंडिंग का फीचर था, ठीक है. अब वो मैसेज सेंडिंग का फीचर जो है, वो फर्स्ट वर्जन पे काम कर रहा था. वो फिर उसके ऊपर वर्क करते गया. फिर जो डेवलपर है ना, वो देखा कि ये 100th वर्जन पे, लेट्स सपोज वाई वर्जन, मतलब 100th वर्जन पे वो देखा कि अरे ये तो काम नहीं कर रहा है. LBVM1 ग्रुप, ये क्यों बन गया यार? गिव मी अ मिनट. ठीक है. उस डेवलपर ने देखा कि 100th वर्जन पे उसका वो काम नहीं कर रहा है. तो ये देखो, ये LBVM1 ग्रुप कैसे बन गया यार? This shouldn't be LBVM1 group ना. चलो देखते हैं, ये चेक कर रहा है. सर, इसे इसे सबनेट के अंदर हम लोग क्रिएट कर रहे हैं क्या वर्चुअल मशीन को? हाँ, ये सबनेट के अंदर ही क्रिएट करेंगे ना. जी जी जी. हाँ, जैसे फॉर एग्जांपल देखो, अभी हम ये जैसे LBRG यहाँ पे कर रहे हैं, ये वर्चुअल मशीन का नाम रखते हैं हम LBVM2, ठीक है. सेंट्रल यूएस अवेलेबिलिटी सेट कर देते हैं. एक माई एवी सेट करके बना हुआ है. सिक्योरिटी टाइप स्टैंडर्ड रहने देते हैं. दिस इज द बेसिक लेवल ऑफ सिक्योरिटी फॉर योर, ठीक है. ये रहने दो. दिस इज 3 GB, ठीक है. सिलिकॉन, ठीक है. पासवर्ड @123, सेम गोज फॉर पासवर्ड @123, ठीक है. इसमें सब कुछ अलाउ कर देते हैं. नेक्स्ट नेटवर्किंग, ठीक है. ये LBVNet पे चला गया, ठीक है. इसे क्रिएट न्यू पे करते हैं. ये तो भी स्टैंडर्ड लिया हुआ है, इसको बेसिक कर देते हैं. असाइनमेंट डायनेमिक ही रहने देते हैं.
ठीक है, NIC, अरे let's create this LB VM2 IP, LB VNet, LB subnet. Next management, next monitoring, next advanced, tags, next review and create. Let's review and create it. ये देखते हैं जब तक. अच्छा, some resources couldn't be moved. Error details क्या है? Resource validation, please see the diagnostic. अच्छा, let's create it. अगर ये create नहीं होगा then we have to create our whole resource group again. हो सकता है वो उसके जो VNet का जो IP होगा, वो SKU again वो वहाँ पे standard हो गया होगा. That might be a probable reason. ठीक है, anyways, I will just try to configure it all in front of you. Submitting deployment template to resource group. चलो ये बस डिप्लॉय हो जाए तो कम से कम एक वहाँ पे वर्चुअल मशीन तो दिखेगा. VM2 IP, VM2 NSG 279 आ गया, कुछ आ गया. चलो चलते हैं इसके रिसोर्स पे. ये चलो ये LBRG पे है, ये हमारे सेम VNet पे है, LB VNet LB सबनेट पे है. तो चलो अब ये तो मेरा इस पे बन गया है. इसका SKU भी हम लोग देख लेते हैं. इसका SKU देख लेते हैं. दैट इज बेसिक. वो बेसिक होगा तब वो वहाँ पे मेरा कॉन्फ़िगर हो गया होगा. ठीक है, गो टू दिस ओवरव्यू सेक्शन. अब ये जो SKU है ना, ये बेसिक हो गया है. ठीक है, तो एटलीस्ट मेरे पास अब जो यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर रहे थे हम लोड बैलेंसर इस VNet के ऊपर, हम जैसे ही ऐड पे क्लिक करेंगे ना, अभी भी नहीं आ रहा है. अच्छा, इसको रिफ्रेश कर देते हैं. Just give this LB VNet my backend pool. See, अब यहाँ पे मेरे पास एक LB VM2 करके बन के आ गया है कि इस VM को तो मैं एटलीस्ट यहाँ पे अटैच कर सकता हूँ. ठीक है, तो अभी मैं यहाँ पे इसे अटैच कर देता हूँ. फिर बाद में इसे और भी अटैच करेंगे. वो VM1 को फिर से कॉन्फ़िगर करके वहां पे हम इसको अटैच करेंगे. लेकिन अभी LB VM2 पे अभी तक मेरा वेब सर्वर कॉन्फ़िगर नहीं हुआ है, क्योंकि दिस इज व्हाट डू यू से, अभी तक इसमें मेरा वेब सर्वर, अभी मैंने इसे जस्ट बनाया ही है. आई क्लिक ऑन सेव. मैं लोड बैलेंसर पे गया. अच्छा, ये लोड बैलेंसर यहाँ पे बन नहीं रहा था. लेट्स क्रिएट इट अगेन. It should be in LBRG. It should be my load balancer. Central US ये बेसिक होना चाहिए, ये पब्लिक होगा. नेक्स्ट IP कॉन्फ़िगरेशन करते हैं. Do we have any? Let's give this as my front end. क्रिएट कर देते हैं नया my LB IP. गिव दिस डायनेमिक. ये बेसिक रहेगा, ये डायनेमिक रहेगा. ओके, ऐड. चलो नेक्स्ट बैकएंड पूल्स पे जाते हैं. अब हम यहाँ पे अपने बैकएंड पूल को ऐड करते हैं. माय बैकएंड पूल LB VNet इस पे करेंगे. ऐड पे क्लिक करते हैं. सो विल बी गेटिंग वर्चुअल मशीन ओवर हियर. इसको हम ऐड कर देंगे. नाउ आई गिव
go on to save. चलो अब हमारे पास नेक्स्ट इनबाउंड रूल्स है, ठीक है। अब इसको देख लेते हैं। ये कुछ बोल रहा है ऐड लोड बैलेंसिंग रूल, ये कुछ आउटबाउंड रूल्स बोल रहा है, ये टैग्स रिव्यू एंड क्रिएट। तो पहले ना कुछ लोड बैलेंसिंग रूल हम लोग यहाँ पे ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो ये लोड बैलेंसिंग रूल क्या कहता है, जो तुम्हारा लोड बैलेंसर का फ्रंट एंड आईपी है वो क्या होगा, वो माई फ्रंट एंड आईपी होगा, और वो बैकएंड पूल होगा वो क्या होगा, वो माई बैकएंड पूल। मतलब इस बैकएंड पूल में जो भी वेब सर्वर्स हैं आप इसे आप बैकएंड पे रखना और फ्रंट एंड पे मेरे को एक आईपी दे देना, ठीक है। इसका नाम दे देते हैं माई लोड रूल TCP. This should be port 80, backend port 80, health probe, ठीक है। ये health probe क्या कहता है, कहाँ चला गया, my health, my rule कर देते हैं इसे, फ्रंट एंड आईपी को माई फ्रंट एंड आईपी कर देते हैं, ये माई बैकएंड पूल चला जाएगा। दिस इज TCP, पोर्ट शुड बी 80, बैकएंड पोर्ट शुड आल्सो बी 80। ये जो हेल्थ प्रोब है ना, ये हेल्थ प्रोब को हम एक नया क्रिएट करते हैं, ठीक है। हेल्थ प्रोब क्या कहता है, फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो लोड बैलेंसर को पता चले, लोड बैलेंसर को तो ये भी पता चलना चाहिए ना कि वेदर दीज सर्वर्स आर इन हेल्दी स्टेट और नॉट, कि ये पांचों में से, ये चार में से कोई अनहेल्दी तो नहीं है। वो अनहेल्दीनेस कैसे पता चलेगा, या फिर हेल्दीनेस कैसे पता चलेगा कि वेदर दीज आर सर्वर्स आर लाइव अप, हमें कैसे पता चलता है कि सर्वर क्रैश कर गया। वो लोड बैलेंसर अगर सर्वर क्रैश कर गया है तो हमारे सारे डेवऑप्स इंजीनियर्स को बता देगा कि ये एक सर्वर डाउन हो चुका है, ठीक है। और वो पता कैसे चलता है, दैट टू यूजिंग आवर हेल्थ प्रोब, ठीक है। इसका हम नाम रख देते हैं माई हेल्थ प्रोब, TCP पोर्ट 80 इंटरवल 5 सेकेंड, सेव कर देते हैं, ठीक है। एक सेशन परसिस्टेंस करके होता है और एक आइडल टाइम आउट। सेशन परसिस्टेंस अभी हम यहाँ पे नन रखे हैं, ठीक है। नन का मतलब ये होता है, ये सेशन परसिस्टेंस का मतलब ये होता है, फॉर एग्जांपल मैं अपने अगर फिगर पे आऊं, ठीक है, तो अगर मान लो यहाँ पे किसी एक यूजर ने रिक्वेस्ट मारा, एक मिनट, या इफ सपोज एक किसी यूजर ने ही रिक्वेस्टेड द लोड बैलेंसर फॉर अ रेस्पॉन्स, ठीक है। ये यहाँ से गया या लोड बैलेंसर के पास, और लोड बैलेंसर ने ना इस आईपी का इस सर्वर का रेस्पॉन्स हमें इस यूजर को सर्व किया, ठीक है। तो सेशन परसिस्टेंस मतलब क्या कहता है कि अगर हम यूजर को हर एक सिंगल हिट पे, मतलब हर एक नए हिट पे हम क्या उसे नए सर्वर से भी रिस्पॉन्स दे सकते हैं, या फिर आपको कुछ परसिस्ट करना है आप अपने, अगर मान लीजिए ये यूजर फिर से आता है और अगर हम सेशन परसिस्टेंस कुछ लगा के रखे हुए हैं तो अगले टाइम पे फिर से यही सर्वर मेरे को हिट करके वापस रिस्पॉन्स देगा। दिस इज मोस्ट एप्लीकेबल प्रैक्टिकल सोल्यूशन इसका हम देखा जाए तो, जब भी हम लोग OTP सेंड करते हैं, अगर हम एक सर्वर पे एक OTP रिक्वेस्ट भेजे हैं, अगर OTP नहीं आया, अगर फॉर सम रीजन अगर OTP नहीं आया, फिर से हमने रीसेंट OTP क्लिक किया या फिर पेज को रीलोड कर दिया, तो वापस से लोड बैलेंसर इस यूजर के डेटा को अपने पास रखता है कि अच्छा ये डेटा तो इसने तो पहले एक रिक्वेस्ट मार के रखा हुआ है, अब इसे फिर से इसी सर्वर से अगर रिस्पॉन्स गया है तो यहीं का OTP जो भी अगर यहाँ पे जनरेट हुआ होगा ये वापस यहाँ पे भेज दिया जाएगा। पेमेंट गेटवेज हो गया, ये सब चीज में ये सेशन परसिस्टेंस का काम आता है। फॉर द टाइम बिंग हम यहाँ पे सेशन परसिस्टेंस अभी कुछ नन लेके चलेंगे, सेव कर देते हैं। चलो नेक्स्ट आउटबाउंड रूल करने का जरूरत है नहीं। नेक्स्ट रिव्यू एंड क्रिएट करते हैं। माई बेसिक लोड बैलेंसर, बेसिक रीजनल है, सब कुछ ये है। नाउ लेट्स क्रिएट इट। वैलिडेशन पास्ड, क्रिएट करते हैं और एक काम करते हैं, जो हमने एक नया VM बनाया ना LB VM2, ठीक है, हमारे रिसोर्स ग्रुप में गो टू द रिसोर्स ग्रुप या फिर गो टू द VMs, हमने एक जो नया अभी VM बनाया था VM2, ये चला गया LB VM ग्रुप में, इसको यहाँ से वापस लाया नहीं जा सकता है, ठीक है। तो इस पे जाके हम लोग वेब सर्वर कॉन्फ़िगर कर लेते हैं पहले। ये IP एड्रेस गया, मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ सिलिकन, ये कौन सा था, क्या नाम है, LB VM2।
LBVM2 ऐड कर देता हूँ, ट्राई कनेक्टिंग इट, कनेक्ट करता हूँ। चलो आई एम इनसाइड, और इधर देखो हमारा जो डिप्लॉयमेंट है लोड बैलेंसर का वो डिप्लॉय हो गया। अब नाउ वंस आई गो टू दी लोड बैलेंसर, अब तुम यहाँ पे देखोगे इसके पास क्या क्या अवेलेबल है, ठीक है। अब इसके पास माई बैकएंड पूल है, इसके पास एक वर्चुअल मशीन भी है, इसके पास लोड बैलेंसिंग रूल है अपना, इसके पास एक अपना हेल्थ प्रोब है, ठीक है। ये कौन से लोकेशन पे है, ये यहाँ पे सेंट्रल यूएस पे है, ठीक है। सी मोर पे जाएंगे हम, इसके पास एक पब्लिक आईपी मिला हुआ है 40.78.140.82। मैं इसे कॉपी करता हूँ। अभी हम यहाँ पे इसको अगर हिट करेंगे, आई वोंट बी गेटिंग एनीथिंग, क्योंकि हमने अभी तक वेब सर्वर बनाया ही नहीं है, ठीक है। अब हम यहाँ पे अपना वेब सर्वर को कॉन्फ़िगर करते हैं, ठीक है। अब कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे वो हम देख लेते हैं। एक काम करते हैं, तब तक एक और वर्चुअल मशीन बना लेते हैं। इस वर्चुअल मशीन को डिलीट करके एक और वर्चुअल मशीन बना लेते हैं। डिलीट, चलो भाई जल्दी डिलीट हो जाओ। ये सब कुछ हटा देना, आई अंडरस्टैंड, डिलीट, ठीक है। इसको यस करते हैं। लेट इट ओपन द सर्वर मैनेजर, फिर उसके बाद हम लोग इस पे कॉन्फ़िगर करेंगे। तब तक ये देखते हैं, ये डिएलोकेट जैसे हो जाएगा उसके बाद हम लोग अपना एक नया वीएम बनाने का काम पे लग जाएंगे। चलो लेट इट रन इट। हम दूसरा वीएम क्यों बना रहे हैं, कौन बता पाओगे? वी आर क्रिएटिंग द सेकंड वीएम ताकि लोड सर बैलेंसर को लोड दोनों बैलेंसर VMs को चेक कर सके कि वो लोड बैलेंस कर रहा है कि नहीं कर रहा है। क्योंकि अभी अब जो है हम नाउ वी आर गोइंग टू हिट द पब्लिक आईपी ऑफ द लोड बैलेंसर। अभी लोड बैलेंसर के पास कितने वीएम है? एक वीएम है। लेकिन क्या एक वीएम कोई सेंस बनाता है? एटलीस्ट वी हैव टू गिव हिम अनदर वीएम, ताकि हमें तो पता चले कि लोड बैलेंस हो रहा है, ठीक है। तो पहले यहाँ पे इसे सर्वर बना देते हैं। क्लिक ऑन नेक्स्ट, क्लिक ऑन नेक्स्ट, क्लिक ऑन नेक्स्ट, क्लिक ऑन नेक्स्ट, क्लिक ऑन वेब IIS, क्लिक हो जा, ऐड फीचर्स, क्लिक ऑन नेक्स्ट, क्लिक ऑन नेक्स्ट, क्लिक ऑन नेक्स्ट, क्लिक ऑन नेक्स्ट, ठीक है। चलो ये यहाँ पे LBVM1 डिलीट हो गया, उसे फिर से हम बनाते हैं पहले। चलो ये बोल रहा है LBVM1 है ही नहीं हमारे पास, कहाँ गया? ठीक है, क्रिएट, LBRG, इसे रख देते हैं LBVM1 सेंट्रल यूएस। इसको एक एबिलिटी सेट में रखना है, ये तुम्हें पता है क्यों रखना है। माई एबी सेट में जाएगा। अगर ये सेम एबिलिटी सेट में नहीं होगा देन वी कैन नॉट पुट इट इन द लोड बैलेंसिंग बैकएंड रूल। इसे स्टैंडर्ड रहने देते हैं, लेट इट बी, ठीक है, लेट इट बी 3GB, यूजर नेम सिलिकन, password would be password@123, again password would be password@123। ऑल सेलेक्टेड पोर्ट कर देते हैं, HTTPS SSH सब कुछ रहने दो एज इट इज। ये भी ऐसे रहने दो नेटवर्किंग के। LBVNet पे अब गया। अब LBVNet ये IP1, ये देखो ये फिर से स्टैंडर्ड लेके बैठा हुआ है। हम इसे IP कर देते हैं, बेसिक कर देते हैं और डायनेमिक कर देते हैं, ठीक है। क्योंकि हम बेसिक लोड बैलेंसर बना रहे हैं तो इसका SKU शुड बी ऑलवेज बेसिक। ओके कर दिया मैंने, ठीक है। नेक्स्ट मैनेजमेंट पे गया, नेक्स्ट मैनेजमेंट पे गया, नेक्स्ट एडवांस पे गया, नेक्स्ट टैग्स पे गया, नेक्स्ट रिव्यू ऑन क्रिएट। इन द मीन टाइम इधर ये हो जाना चाहिए था, अभी तक हुआ नहीं है। सो इधर हमें कुछ मिला नहीं अभी तक, क्योंकि अब देखो ये जैसे यहाँ कंप्लीट हो गया है, ये इंस्टॉलेशन सक्सीड हो गया है। इसका LBVM2 के IP को हमने अभी तक हिट नहीं किया है।
हमने लोड बैलेंसर के आईपी को हिट किया और ये हमें कुछ यहाँ पे इंफॉर्मेशन दे रहा है। इसको चेंज करते हैं पहले। चलो, ये VM1 पे है। मैं गया इसके दिस पीसी, विंडोज C, inet pub, www root, इसे मैं ओपन करता हूँ यूजिंग नोटपैड। ठीक है, मैं यहाँ पे कुछ टाइप कर देता हूँ। हेलो Azure aspirants from VM2, इसे मैं सेव करता हूँ, Ctrl+S। अब देखता हूँ, अब इसे रिलोड मारता हूँ। दिस इज द पब्लिक आईपी ऑफ द लोड बैलेंसर। ठीक है, क्लियर एवरीवन, दिस इज द पब्लिक आईपी ऑफ द लोड बैलेंसर। अभी एक ही VM है, इसलिए अभी ये VM2 का यहाँ से डेटा उठा के यहाँ पे रख ले रहा है। ठीक है, अब हम यहाँ पे काम करते हैं। ये जो हमारा बन गया, वैलिडेशन पास हो गया। अच्छा, क्रिएट नहीं हुआ था। या लेट्स क्रिएट इट। अब हमें बस एक काम है, इसके बैकएंड पूल पे, लोड बैलेंसर के बैकएंड पूल पे ये VM1 को भी ऐड करना है, लेकिन VM1 के पहले हमें उसे वेब सर्वर बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो चलो जब तक ये करते हैं वो क्वेश्चन के ऊपर वापस आते हैं। ठीक है, हमारे पास मान लो 100 वर्जन्स ऑफ एन एप्लीकेशन है। एक यूजर, एक डेवलपर उसे डेवलप करते करते उसे 100 वर्जन में पता चला कि जो वर्जन पहले काम कर रहा था, एक फीचर जो वर्जन 1 पे काम कर रहा था, वो वर्जन 100 पे काम नहीं कर रहा है। ठीक है, तो मेरा क्वेश्चन समझ रहे हो तुम लोग? अरे व्हाट्सएप का एक फीचर है, मान लो मैसेज सेंड करने का, वो फर्स्ट वर्जन पे काम कर रहा था और डेवलपर डेवलप करता गया 100th वर्जन पे उसे पता चला कि अरे भाई ये तो काम नहीं कर रहा है, ये फीचर यहाँ पे काम नहीं कर रहा है। तो द क्वेश्चन इज व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्जन चेक्स ही नीड टू डू टू फाइंड आउट वेयर द प्रॉब्लम गॉट स्टार्टेड। आसान भाषा में और बताऊं क्या? कितने लोगों को ये क्वेश्चंस क्लियर है? जस्ट रेज योर हैंड। किसी को क्लियर नहीं हुआ? सर फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए। ठीक है, अरे एक एप्लीकेशन है, उसके मान लो 100 वर्जन्स अवेलेबल हैं। मान लो 100 वर्जन, उसके 1000 वर्जन भी हो सकते हैं, जितने भी हो सकते हैं। ठीक है, एक फीचर था जो वर्जन 1 पे काम कर रहा था, या वर्जन 10 पे काम कर रहा था, वर्जन 50 पे भी काम कर रहा था, लेकिन फिर देखा कि ना 100वें वर्जन पे वो काम नहीं कर रहा है। ठीक है, तो उस डेवलपर को या फिर उस जो भी टेस्टिंग वाले टीम है, उसको मैक्सिमम कितने नंबर ऑफ वर्जन्स को चेक करना पड़ेगा ताकि उसे पता चल जाए कि ये किस वर्जन पे एग्जैक्टली काम करना बंद कर दिया था। अब समझ में आया? जी सर। हाँ सर। चलो बताओ भाई तुम लोग, अगर अब भी क्वेश्चंस क्लियर नहीं हुआ तो भाई फिर मेरे तो चलो भाई देखो, इधर VM1 भी रेडी हो गया, तब तो मैं इधर वेब सर्वर बनाता हूँ, तब तो तुम लोग उसका आंसर खोज के रखो। जो इसका आंसर देगा भाई उसकी तरफ से, उसको मेरी तरफ से बहुत मतलब कुछ मिलने वाला है। LBVM1 है। कंटिन्यू करते हैं। और ये जो कंसेप्ट है ना, मतलब जो इसका सोल्यूशन होने वाला है, जो मैं अभी क्वेश्चन पूछा हूँ ना, इसका तुम लोग शायद पढ़ चुके होगे, कुछ तो इसमें लगने वाला है। सर डायनाट्रेस से हम लोग मॉनिटर करेंगे। किससे? डायनाट्रेस आई थिंक। नो डायनाट्रेस? सर, गिट हब से वर्जन कंट्रोल होता है। गिटहब से वर्जन कंट्रोल करोगे? अच्छा ठीक है, तो वर्जन वहां पे चेक करना पड़ेगा ना, हर बार वर्जन चेक करते हुए जाओगे कि अभी मान लो मैं बोल रहा हूँ 100 वर्जन है, तुम बोल रहे हो कि 100 वर्जन चेक करेंगे और पता चल जाएगा कि कहाँ पे इशू आया। जी सर। नहीं भाई, अब तुम अगर मान लो 1000 वर्जन से तो 1000 बार चेक करोगे, 1000वें वर्जन पे अगर तुमको जाके सर पता वो चल रहा है। ऑटोमेशन हो जाएगा सर, वो अपने आप चेक करते रहेगा सारा नहीं सर्वर यार, से। कैसे करेगा? ये यूजर फाउंड बग है, वो ऑटोमेशन वो नहीं कर पाएगा।
सुनो करो करो यार तुम लोग वो आंसर खोजो। तब तो देखो मैं ये VM1 पे भी मैं सर्वर कॉन्फ़िगर करता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं अपने लोड बैलेंसर पे, मैं लोड बैलेंसर्स में जाता हूँ। दिस इज माय लोड बैलेंसर। इसके जो बैकएंड पूल है ना, इसके बैकएंड पूल में मैं ऐड करता हूँ। ठीक है, ये माय बैकएंड पूल है। ठीक है, मैं इसमें एक रिसोर्स ग्रुप और ऐड कर देता हूँ। LBVM1 मेरे पास अब अवेलेबल है, मैं इसे ऐड कर दिया। ठीक है, अब इसे मैं सेव कर देता हूँ। देखो अभी यहाँ पे डिप्लॉयमेंट हो रहा है, तो हो सकता है ये डाउन हो जाए कुछ देर के लिए। नहीं, डाउन नहीं हुआ है। ठीक है, इसे होने दो, तब तक मैं इधर आ जाता हूँ अपना। नहीं मिला आंसर? भाई देखो एक ऑप्शन तो है तुम्हारे पास कि अगर 100 वर्जन है तो मैं 1 से लेकर 100 तक सारे चेक कर लूंगा, जहां पे बीच में गड़बड़ आएगा मेरे को पता चल जाएगा। बट इज इट ऑप्टिमल? नो सर। चलो तो और बताओ यार, कुछ तो पढ़े सर होगे। वो ऐसे 58 वर्जन चेक कर देगा, अगर काम कर रहा है तो उसका ऊपर ठीक है, उसका ऊपर वाला नीचे वाला उस हिसाब से आधा आधा कर करके चेक करेगा। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? बाइनरी सर्च। इसको बाइनरी सर्च बोलते हैं। काम आया ना? कुछ पढ़े थे बाइनरी सर्च करके, तो आज काम आया कि नहीं आया? यस सर। कौन हो, नाम बताओ तुम्हें थोड़ा तो। नाम क्या है तुम्हारा? सर सर मेरा, ये अरे उसका भाई, जिसने बाइनरी सर्च बताया उसका। सर अभिजीत भट्टाचार्य। अच्छा, अब उतना दिन से तुम बाइनरी सर्च पढ़ रहे थे, आज एक प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन आ गया ना, कि अगर मान लो कल के डेट पे अगर तुम कोई सॉफ्टवेयर टेस्टिंग पे बैठे हुए हैं और ऐसा कुछ यूज केस आ गया, तो मोस्ट ऑप्टिमल कैसे तुम खोजोगे, तुमको पता चल गया कि बाइनरी सर्च लगाना है। सबको समझ में आया इसका सोल्यूशन? सबको आया कि मैं एक्सप्लेन करूँ? Yes. Yes, sir. थोड़ा क्लिक किया, थोड़ा लॉजिकल एबिलिटी बढ़ा क्या? तो चलो अब इसके बैकएंड पूल पे तो वो ऐड हो गया। डिप्लॉयमेंट देख लेता हूँ हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, ये माई लोड बैलेंसर है, इसके बैकएंड पूल पे हमारे पास माई बैकएंड पूल एक एक है, इसके पास दोनों के पास एक एक है। ठीक है, तो इस लोड बैलेंसर के जो पब्लिक आईपी है, इस पब्लिक आईपी को मैं तुम्हें शेयर करता हूँ। कहाँ गया ये पब्लिक आईपी? ये पब्लिक आईपी था ना लोड बैलेंसर का, देख लो 40.78.140.82। दिस इज माय लोड बैलेंसर्स पब्लिक आईपी। ठीक है, मैं वीएम को हिट नहीं कर रहा हूं, मैं लोड बैलेंसर को हिट कर रहा हूं। तब जाके यहाँ पे आ रहा है हेलो एज्योर एस्पिरेंट्स फ्रॉम VM2। ठीक है, मैं इसे कॉपी करके मैं तुम्हें भेजता हूँ। ठीक है, मैं तुम्हें भेज रहा हूं और तुम लोग मेरे को बताओ कि तुम लोग को क्या क्या आ रहा है। ठीक है, तब तक मैं इधर और करता हूँ कॉन्फ़िगर। इधर ये वेब सर्वर बन रहा है। I want everyone to hit this particular IP that I have provided you in the chat, most recent chat. अरे बताओ भाई क्या आ रहा है तुम्हारे? Hello, Azure aspirants from Hello, VM2. Azure aspirants from VM2. अच्छा VM2 आ रहा है। अच्छा अब देखो तो, अब कुछ देर बाद कुछ जो लोग अभी तक नहीं किए हो अभी रुक जाओ, मैं तब तक यहाँ पे चेंज करता हूँ। WW रूट पे जाके ये आई स्टार्ट को मैं चेंज करता हूँ। ये VM1 है अपना। ठीक है, इस VM1 पे मैं कॉन्फ़िगर करना चाह रहा हूँ। मैं नोटपैड पे जाऊँगा, इस पूरे को हटाओ के वहाँ पे आ रहा है Azure aspirants from VM1। मैं बोल लूँगा VM2 से तो आ जा, VM1 से यहाँ से आ जाएगा। Ctrl+S सेव किया। चलो अब जो जो नहीं किए थे, अब जो जो नहीं किए थे अब फिर से हिट करो तो किसी का VM1 आ रहा है क्या? यस सर। किसका आया? Yes, sir. Yes, sir. सर मेरा
तो अब देख रहे हो, सर मेरा आ रहा है VM1। ठीक है। Yes, तो sir, देखो हमने PM1 अलग अलग कंटेंट क्यों डाला, हमने अलग अलग कंटेंट डाला ताकि देखने के लिए ये सेम आईपी पे हमारे बैकएंड में 2 सर्वर थे, वो दोनों पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। जब हमारा एक सर्वर काम पे लगा हुआ था तो हो सकता है किसी को VM1 से रिस्पॉन्स आया हो, किसी को VM2 से रिस्पॉन्स आया सबको? एवरीवन गेटिंग कि मैं क्या Yes, sir. कहना चाह रहा हूँ? Yes, sir. Yes. ठीक है। तो इन जनरली क्या होता है, इस सारे VMs में एक सिंगल कंपोनेंट रहता है, सिंगल कंपोनेंट रहता है, ताकि भाई ये जो पब्लिक आईपी है ना, ये पब्लिक आईपी मैं पब्लिक को दे दिया कि भाई तुम अब यहाँ से सर हिट जो करना है करो। हाँ हेलो। सर जो लोग पहले से मतलब वही आईपी पे हिट किए थे तो उन्हें 2 ही आएगा क्या? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। इसी को तो वहां पे मैंने सेशन परसिस्टेंस के बारे में बताया कि अगले 4 मिनट तक या जब तक वो वहां पे टाइम आउट नहीं हो जाता या सब कुछ नहीं हो जाता, तो अगर वो तुम्हारा आईपी पकड़ के नहीं बैठा हुआ है लोड बैलेंसर, तो वो तुम्हें एवरी रिक्वेस्ट पे हो सकता है वो तुम्हें नया रिस्पॉन्स दे। लेकिन वो डिपेंड करता है ना कि तुम्हारे जो बैकएंड वर्चुअल मशीन्स हैं उसमें डेटा, उसके फ्रंट एंड में डेटा क्या है। हमने तो यहाँ पे VM2 और VM1 को डिस्टिंग्विश कर दिया ना, तब जाके पता चल रहा है कि ये अलग अलग डेटा है। अब मैं दोनों VMs पे जाके मैं सेम डेटा रख देता हूँ, मतलब कि सेम वेबसाइट रख दूंगा, तो मेरे को पता चलेगा क्या कि कौन से VM से आया? कभी भी पता चलेगा क्या? नहीं। हो सर। नहीं। वही है। तो ऐसे ही हमारे इंडस्ट्री में काम होता है कि हमारे लोड बैलेंसर का आईपी हमें मिला हुआ रहता है, वो इंटरनली इन सारे VMs को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है ट्रैफिक को, तब जाके यहाँ पे ये जाता है। चलो तब तक एक बढ़िया सा यहाँ पे एक वेबसाइट डाल के रखते हैं अपने लोड बैलेंसर पे, ठीक है। तो एक काम करेंगे, लोकल सर्वर पे चलते हैं, इसको IIS कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कर देते हैं पहले। समझ में आया? इंटरेस्टिंग लगा आज का? यस सर। यस ठीक है। ये हम लोग बहुत ही ग्रास रूट लेवल पे पढ़े हैं। इंडस्ट्री में बहुत ही जबरदस्त काम होता है इस लोड बैलेंसर्स के ऊपर, और ऊपर से दिए तो ये तो बेसिक्स वाला है, ये बेसिक लोड बैलेंसर है। स्टैंडर्ड लोड बैलेंसर ही हम लोग यूज करते हैं जनरली हमारे अपने इंडस्ट्री में, क्योंकि उसमें सिक्योरिटी ज्यादा रहता है। इसमें सिक्योरिटी कुछ ज्यादा रहता नहीं है, इसलिए बेसिक लोड बैलेंसर कोई भी यूज नहीं करता है। ठीक है। ये बस समझने के लिए था कि लोड बैलेंसर कंसेप्ट क्या है, कितने तरीके के होते हैं, पब्लिक लोड बैलेंसर क्या होता है, प्राइवेट लोड बैलेंसर, पब्लिक लोड बैलेंसर क्या होता है, और इंटरनल लोड बैलेंसर क्या होता है। हम जल्दी से यहाँ से गूगल खोलते हैं। ठीक है भाई, करते हैं। अब सुनो, अपने लैब सेशंस में बढ़िया से सब कुछ पूरा देखना, कहाँ मेरे से क्या गलती हुआ, उस गलती को जब तुम कर रहे होगे साइड बाय साइड वो गलती मत करना। वो SKU को बेसिक करने का शुरू में ही ट्राई कर लेना, ताकि बाद में दिक्कत ना हो, क्योंकि नहीं तो फिर मेरे को डिबग करना पड़ा। डाउनलोड। सर वो SQ को छोड़ के और कुछ था क्या मिस्टेक्स? नहीं, कुछ गड़बड़ तो और नहीं हुआ था, बस वो SKU ही, वो जो गलती हुआ था वो स्टैंडर्ड वहाँ हाँ, पे सेलेक्ट हो वो गया था बेसिक होगा। हाँ, उसको बेसिक कर लेना। ठीक है। ठीक तो है जब भी करने बैठो, एक अप्रोच मैं तुम्हें बताता हूँ, ठीक है। जब भी करने बैठो कोई भी असाइनमेंट या कुछ भी, तो पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट को पढ़ो बढ़िया से, ठीक है। प्रॉब्लम स्टेटमेंट को पढ़ो और उसके क्या क्या अप्रोचेस हैं वो उसको देखो। डाउनलोड वेबसाइट। सर वो स्टैंडर्ड SKU कब यूज होता है सर? स्टैंडर्ड SKU तब यूज होगा जब हम स्टैंडर्ड लोड बैलेंसर यूज करेंगे। अभी हम लोग कौन सा लोड बैलेंसर यूज कर रहे थे? बेसिक। बेसिक। डाउनलोड वेबसाइट। ठीक है। अभी बस हम कुछ नहीं कर रहे हैं, एक बेसिक सा वेबसाइट डाल के अपने दोनों लोड बैलेंसेस में डाल देते हैं, ठीक है। लोड बैलेंसर पर दोनों VMs में डाल देंगे, ताकि तुम लोग को पता भी ना चले कि ये किस से क्या आ रहा है। भाई तो यहाँ आ जा, फ्री CSS तू ले ले यहाँ से। कौन सा वाला कर लेते हैं? ये वाला कर लेते हैं, एक्सेप्ट कुकीज। ठीक है। और देखो, अगर मान लो कल के डेट में तुम अगर कुछ बने, कुछ क्लाउड इंजीनियर बने, तो वॉट एवर VMs दैट यू आर गोइंग टू गेट ना, ये अभी हम लोग फ्री VMs यूज कर रहे हैं, तो उसको लेटेंसी ज्यादा मिल रहा होगा, लैग ज्यादा मिल रहा होगा। बट जब तुम काम करोगे तो तुम्हें ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। यू विल बी गेटिंग हाई एंड मशीन्स। ठीक है। ये डाउनलोड हो गया, व्यू डाउनलोड्स में जाते हैं, ओपन करते हैं इसके सारे कंटेंट को। कमांड A, कमांड C। अच्छा, और कहाँ गया?
किस पे जाते थे? पीसी पे ना? इस पीसी दिन पीसी विंडोज सी पे www रूट पे, ये दोनों को पहले हटाते हैं। चलो बाबू तुम यहाँ से हट जाओ। then copy फिर यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। paste. ठीक है, देखते हैं पेस्ट होता है कि नहीं। चलो ये हमारा VM1 पे तो पेस्ट हो गया। अब हम सेम देखते हैं हमारे VM2 में भी पेस्ट हो सकता है क्या? VM2 कहाँ है? मेरा कनेक्टेड है ना। चलो पहले इसको दोनों को हटाते हैं, देखते हैं। डिलीट कर दिया मैंने, देखता हूँ पेस्ट होगा कि नहीं। हो जाए भाई, हो जाए हो जाए हो जाए। अच्छा हो रहा है, कुछ तो हो रहा है। लेट लगेगा क्या? ठीक है। तब तक ये काम करो, जब तक ये कॉपी हो रहा है तब तक तुम लोग उस लोड बैलेंसर को हिट करो, मतलब जो मैंने आईपी दिया है ना उससे हिट करो। अरे हिट करो सब लोग। सर कर दिया ऑलरेडी। क्या क्या आ रहा है? सर वही VM2 का आ रहा है। अभी VM2 आ रहा है? रिफ्रेश करो, रिफ्रेश करो एवरीवन, सर रिफ्रेश। फॉरबिडन एक्सेस आ रहा है सर। फॉरबिडन एक्सेस आ रहा है? अच्छा चलो, किसी को फॉरबिडन एक्सेस आ रहा है? एक्सेस किसी को- डिनाइड। फिर आपके स्क्रीन में जो ऐसे घूम रहा है वो सर एक्सेस डिनाइड। अच्छा ठीक है, 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट रुक जाओ। अच्छा अनस्पेसिफाइड एरर, ये क्या हो गया यार? 1 मिनट। नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे कॉपी नहीं हो पाया। अच्छा 1 मिनट रुक जाओ, यहाँ पे भी कॉपी कर लेते हैं। ऑफ कर देते हैं। किसी को तो ये मिल रहा होगा पूरा वेबसाइट, ये जो घूम रहा है, किसी को तो ये मिल रहा होगा। यस सर मुझे मिला। सर आ रहा है। यस सर ये वाला मिल रहा है। अच्छा अभी फॉरबिडन एक्सेस डिनाइड आ गया, क्योंकि एक जगह से तो मैंने डिलीट ही कर दिया है। ठीक है, इसे कॉपी कर लेते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं, इसके डाउनलोड लिंक को कॉपी कर लेते हैं। कहाँ से कॉपी होगा यार? अच्छा इसको कॉपी कर लेते हैं। ये चला गया मेरा। हमने VM1 पे डाल दिया है ना, VM1 पे डाल दिया ना हमने। हाँ VM1 पे डाला हुआ है, VM1 पे डाला हुआ है, VM2 पे डालना है। ओके कर लेते हैं। ठीक है भाई, एक्सेप्ट कर लिया मैंने। सर अभी वर्टेक्स वेबसाइट शो हो रहा है सर। अच्छा किसी को वर्टेक्स पे शो हो रहा होगा, किसी को डिनाइड शो हो रहा होगा। डिनाई कितने लोगों को शो हो रहा है? सर मेरे को सर show हो रहा मुझे है डिनाइड। ठीक है, कुछ नहीं, बस 10 सेकंड और रुक जाओ तुम। आईनेट पब पे चलते हैं, डब्ल्यू रूट पे। ये सर सब मेरे हटा- को दिखाया अभी वर्टेक्स। अच्छा दिखाया, अच्छा रुक जाओ, क्लिक करो यार। चल ठीक है, पेस्ट करता हूँ। हाँ अब किसी को डिनाइड नहीं दिखना चाहिए, किसी को अब डिनाइड नहीं दिखना चाहिए। जस्ट क्रॉस चेक एंड टेल। किसी को अभी भी डिनाइड दिख रहा है क्या? नो सर स्वागत पटनायक, नो सर। स्वागत No, पटनायक, क्या आ रहा है तुम्हारे में? तो चलो, दिस इज ऑल अबाउट लोड बैलेंसर्स। कैसे ये लोड बैलेंसर कॉन्फ़िगर किया हमने। ये एक बेसिक लोड बैलेंसर है। हमने 2 VMs बनाए, उस दोनों VM को हमने वेब सर्वर पे बनाया। वेब सर्वर बनाने के बाद हम एक लोड बैलेंसर कॉन्फ़िगर किए। उसके बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं। फ्रंट एंड IP रूल होता है, जिसमें हमारा फ्रंट एंड का IP जाता है, दैट इज बेसिकली द IP ऑफ द लोड बैलेंसर। सेकेंड इज द बैकएंड पूल, कि बैकएंड में कौन से VM से अटैच होगा। एंड थर्ड इज द हेल्थ प्रोब, कि उसे लोड बैलेंसिंग रूल देते वक्त हमें बताना पड़ेगा कि इसका हेल्थ प्रोब क्या होने वाला है, कि हमें कैसे पता चलेगा ये हेल्दी स्टेटस है कि नहीं है। ठीक है, सो दीज ऑल थिंग्स यू ट्राई इट इन योर लैब सेशंस। आई एम जस्ट
रिकॉर्डिंग कहाँ से हटा है? चलो